student, this is chapter 8, Cell, the unit of life, first year NCERT. The cell is the basic structural and functional unit of life. And on the basis of nucleus, cell are of two types. First, prokaryotic and second, eukaryotic. Prokaryotic, pro means primitive and karyon means nucleus. Primitive nucleus means in case of Monera or a bacteria, in nucleus, the all materials of nucleus is scattered inside the cell. And in eukaryotes, U means true, or pro means primitive. Primitive nucleus, karyons means nucleus. And U means true and karyotic means, karyons means nucleus. Means true nucleus found in prokaryotes like a protozoans, amoeba, paramecium, and all plants, lower or higher category of plants, fungi and animals, Animalia family contains eukaryotic nucleus or cell. And the eukaryotic cells further divided into three parts. First part is protoplasm, second vacuoles, third cell wall or plasma membrane. Protoplasm, it's a liquid content inside the cell, means the cell inside the centrally placed nucleus and nucleus containing nucleoplasm. Inside the nucleus, nucleoplasm and the peripheral region containing cytoplasm. And both nucleoplasm and cytoplasm, it's also known as protoplasm. And protoplasm, it's a living matter, are mostly found in nucleic acid. And vacuoles, like the inside, large or small vacuoles. Largest is vacuoles found in plant body, plant cells, and small and maximum in numbers in animal cell. And vacuoles like this, hollow circular structure, and the vacuoles protected by a thin membranous structure is known as tonoplast. Most important question, what is tonoplast? Tonoplast, the outer layer of the vacuoles. And the cell wall, in case of plant cell, two cell membrane, means outer layer, it's a cell wall, rigid or hard circular structure, and inside the thin membranous structure is known as cell membrane. Two-layered structure found in plant cell, but in animal cell, the outer layer is known as plasma membrane or a thin single layer structure. And the cell, history of the cell, firstly, the Robert Hooke in 1665, इन्होंने सबसे पहले कार्क सेल को लिया, और कार्क सेल फाउंड इन प्लांट बॉडी, structural scleral chimatous cells converted into कार्क cells, and कार्क cells are dead cells. And कार्क cells की स्लाइस काटी और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा, और देखने के बाद उन्होंने छोटे छोटे कह सकते हैं कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स थे उसमें, और उस कॉम लाइक छोटे चैम्बर्स को उन्होंने हेक्सागोनल कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा है, हनी बी कॉम्स को। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुली कहा, एंड देन सेलुली को ही बाद में कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेलुली एंड सिंगल फॉर्म में सेल कहा गया। एंड द अदर साइंटिस्ट दूसरे आए, रॉबर्ट ब्राउन
इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को ट्रेस किया। किसमें? आर्किड रूट में। इन्होंने आर्किड प्लांट के रूट सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने जब देखा तो उसके अंदर कुछ मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी या कह सकते हैं उसमें कुछ मूवमेंट दिखा, और बाद में उन्होंने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। एक सेंट्रली प्लेस्ड राउंडेड स्ट्रक्चर सा दिखाई दिया, उन्होंने इसको न्यूक्लियस कहा। एंड देन परकिंजे ये टर्म पहले भी आ चुका है, हार्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो परकिंजे फाइबर सेप्टम में होता है और जो वेंट्रिकल को कवर करता है और उसको शेप देता है। परकिंजे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म मीन्स इन्होंने बताया कि जो लिविंग मैटर है, लिविंग सेल है, उसमें न्यूक्लियस तो है ही है, प्लस न्यूक्लियस के साथ ही साथ उसमें प्रोटोप्लाज्म एक तरह का लिविंग मैटर है जो उसको सरवाइव कराने में हेल्प करता है। और इस प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने कहा सेमी सॉलिड मटेरियल। एंड देन नेक्स्ट साइंटिस्ट हक्सले ने, परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को ट्रेस कर दिया, तो हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कि फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकल वर्क के लिए या फिजिकली ये प्रोटोप्लाज्म वर्क करता है लाइफ में को फॉर्म करने में। एंड देन नेक्स्ट साइंटिस्ट रूडोल्फ वर्चो, 1855 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने ओमनिस सेलुला और सेलुली ये टर्म यूज किया, और मीन्स दैट इज ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी न्यू सेल्स अपने आप जनरेट नहीं होती, उसके लिए मीन्स उसको कहीं से बेसिक प्रिकर्सर सेल्स जो एंसेस्ट्रल होते हैं वो ही जनरेट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि दैट इज ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री सेल्स हैं, एंसेस्ट्रल सेल्स हैं, वही न्यू सेल्स को फॉर्म करती है, उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट स्लीडन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। स्लीडन 1838 इनका टाइम पीरियड था और ये बॉटनिस्ट थे, जबकि स्वान को सुना होगा, नर्वस सिस्टम में आउटर लेयर माइलिन शीट का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, तो उसमें उसकी जो इनर सेल्स होती हैं, राउंडेड सेल्स, उसको स्वान सेल्स कहते हैं। इन्हीं के नाम पे वो स्वान सेल्स का नाम रखा गया है। स्वान्स जो थे ये जूलॉजिस्ट थे और ये 1839 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने सेल थ्योरी को, इन दोनों ने सेल थ्योरी को बताया। सेल थ्योरी मीन्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, एंड क्रोमोसोम्स या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को कैरी करता है। इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स इन्होंने उसमें ट्रेस करके बताया सेल थ्योरी के अंतर्गत।